Hello everyone, welcome to my channel. My name is Sharmishta and this is English with Sharmishta. Today's video is going to be about 11 rules that you must follow to change the narration from direct speech to indirect speech. आज के वीडियो में मैं बताऊंगी 11 ऐसे नियम जिनको आपको फॉलो करना है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में एक वाक्य को बदलने के लिए. रूल नंबर 1 इज inverted commas are removed. पहला नियम है inverted commas हट जाएंगे. Whenever you will change a sentence from direct speech to indirect speech, the inverted commas will be removed. जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में किसी वाक्य को बदलेंगे, इन्वर्टेड कॉमा जो उसमें होंगे वो हट जाएंगे. रूल नंबर 2 इज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज इनटू द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. दूसरा नियम है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो टेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य है उसके अंदर जो टेंस होगा वो टेंस बदल जाएगा जब भी आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करेंगे और बदल के उस टेंस में हो जाएगा जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का है. रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो सेड या सेज लिखा हुआ है. तो अगर डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट टेंस है लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो उसको इनडायरेक्ट करने के बाद वो पूरा वाक्य ही पास्ट टेंस में हो जाएगा. If the reported speech is a statement, the word that will be used as a connecting word. अगर reported speech एक normal statement है, तब जब उसको indirect करेंगे तो inverted comma हटने के बाद वहाँ पर that word लग जाएगा. जैसे she said, my name is Sharmishta. She said that her name was Sharmishta. In this change, inverted commas are removed. The sentence became a sentence of past tense and the word that is used as a connecting word. तो यहाँ पे inverted comma को हटा दिया गया है, पूरा वाक्य एक past tense का वाक्य हो गया है और that शब्द का उपयोग हुआ है. So all the 3 rules are followed in this sentence while changing it from direct speech to indirect speech. Rule number 4 is if the reported speech is a yes-no question, the words if or whether are used as connecting words. चौथा नियम ये है inverted commas के अंदर जो वाक्य है वो अगर एक yes no question है यानी कि ऐसा एक सवाल जिसका हाँ या ना में जवाब हो सकता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच करने के लिए if या तो whether शब्द का प्रयोग होता है. For example, my neighbor asked, will you go to school today? My neighbor asked if I would go to school that day. Rule number 5 is if the reported speech is a WH question, the WH word will be used as a connecting word. पांचवा नियम है अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक ऐसा सवाल है जो एक WH क्वेश्चन है जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं हो सकता तब वो WH वर्ड ही एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह लगता है. फॉर एग्जाम्पल, I asked her what is your name? I asked her what her name was. The 6th rule is if the reported speech is an imperative sentence, the word to is used as a connecting word. छठा नियम है अगर इन्वर्टेड कॉमा का सेंटेंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है यानी कि जिस वाक्य में कोई किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा है तब to शब्द का उपयोग होता है एक कनेक्टिंग वर्ड की तरह. For example, my mother said to me, give me a glass of water. My mother requested me to give her a glass of water. Rule number 7 is the first person that is used within the reported speech changes into the person of the speaker. सातवां रूल है कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वाक्य है उसके अंदर जो फर्स्ट पर्सन है उसका पर्सन चेंज हो जाता है बोलने वाले व्यक्ति के पर्सन में. जैसे सीमा सेड, I want to become a doctor. Seema told that she wanted to become a doctor. The 8th rule is that the second person of the reported speech changes into the person of the person spoken to. आठवां नियम यह है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य का जो सेकंड पर्सन है वह सुनने वाले व्यक्ति के पर्सन में बदल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, रोहिणी सेड टू हर ब्रदर, complete your homework first. Rohini ordered her brother to complete his homework first. Here your becomes his. यहाँ पे your his बन गया because Rohini's brother is a masculine gender. क्योंकि रोहिणी का भाई पुल्लिंग है. Rule number 9 is in case the reported speech is a question, the word said is replaced by asked. नौवां नियम है कि जब रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक सवाल है तब सेड की जगह आस्क्ड लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, माई मदर सेड वेयर आर यू गोइंग बिकम्स माई मदर आस्क्ड
where I was going. The 10th rule is, in case the reported speech is a request or an order, the word said is replaced by requested or ordered. 10वां नियम है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच एक रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ प्रार्थना किया जा रहा है या आज्ञा दिया जा रहा है, तब said शब्द को हटा के requested या ordered लिखा जाता है. For example, the man said to the guest, "Please sit down," becomes the man requested the guest to sit down. The 11th rule is that there are some changes which occur when you change from direct speech to indirect speech. Those are the words today becomes that day, tomorrow becomes the next day, yesterday becomes the previous day, now becomes then, come becomes go, this becomes that, these becomes those, tonight becomes that night. So if you follow all these 11 rules while changing from direct speech to indirect speech, you will make no mistake. तो अगर आप ये 11 नियम का पालन करेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच करने में, तो आपकी कोई भी गलती नहीं होगी. एंड इफ यू कीप प्रैक्टिसिंग यू कैन बिकम परफेक्ट. और अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो आप परफेक्ट बन जाएंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट माय वीडियो टुडे. तो आज के मेरे वीडियो के लिए इतना ही. आई एम श्योर इट वॉज यूजफुल. मेरा विश्वास है कि ये उपयोगी है. सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए. एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है. कीप रीडिंग, लिसनिंग एंड प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ इंग्लिश. इंग्लिश को बहुत ज्यादा पढ़ते, लिखते और अभ्यास करते रहिए. एंड डू टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ टिल आई कम विद माई नेक्स्ट वीडियो. बाय फॉर टुडे.